اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلباء و طالبات، سورۃ البقرہ دوسرا پارہ آیت نمبر 174 سے ہم اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ پہلے ترجمہ، اس کے بعد تفسیر۔ انا بے شک، الذین جو لوگ، یکتمون چھپاتے ہیں، ما جو انزلہ نازل کیا، اللہ نے، من الکتابی کتاب، ویشترون اور وہ خرید لیتے ہیں، بہی اس کے بدلے میں، ثمنن قیمت، معاوضہ، قلیلاً حقیر سا، اولئک سو وہ لوگ، ما نہیں، یأکلون کھاتے ہیں، فی میں، بطونہم اپنے پیٹوں، الا سوائے، النار آگ، ولا اور نہیں، یکلمہم ان سے کلام کرے گا، اللہ یوم القیامتی قیامت کے دن، ولا یزکیہم اور انہیں پاک نہیں کرے گا، ولہم اور ان کے لیے، عذاب علیم دردناک عذاب ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے یہود کا عمل، جرم بیان فرمایا اور اس جرم کی سزا بیان فرمائی۔ چونکہ جرم بڑا سخت ہے، اس لیے سزا بھی بڑی سنگین بیان کی گئی ہے۔ یہ مضمون قرآن مجید کے اندر پہلی دفعہ بیان نہیں ہو رہا، اس سے پچھلی بھی کئی آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے اس مضمون کو بیان فرمایا ہے۔ چونکہ مختلف قبائل کے لوگ یہود کے پاس آتے اور ان سے آ کر پوچھتے کہ تمہارے پاس تورات کتاب ہے، تو تم اپنی کتاب تورات کے مطابق ہمیں بتاؤ کہ کیا یہ جو نبی ہیں جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اللہ تعالیٰ کے یہ سچے نبی ہیں؟ تو یہود ان کو بتاتے کہ ہماری کتاب تورات کے مطابق یہ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی نہیں ہیں۔ بہت سی علامات ایسی ہیں جو اس پیغمبر کے اندر موجود نہیں ہیں۔ یہود لوگوں پر یہ واضح کر دیتے کہ ہماری کتاب تورات کے مطابق یہ اللہ تعالیٰ کے جو پیغمبر ہیں یہ سچے پیغمبر نہیں ہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھوٹا نبی ثابت کر دیتے۔ اپنے طور پر وہ جانتے تھے، وہ دل و دماغ سے یہ بات جانتے تھے، تورات کے اندر جتنی نشانیاں نبی آخر الزماں جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کی گئی تھیں، وہ تمام کی تمام نشانیاں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ کے اندر بدرجہ اتم موجود تھیں۔ یہ جو اللہ پاک نے فرمایا کہ جو نازل کیا اللہ نے کتاب، اللہ نے جو کتاب نازل کی وہ اسے چھپاتے تھے، اور وہ یہ کام اتنا سنگین جرم وہ کرتے کیوں تھے؟ کیونکہ لوگ ان کے ساتھ عقیدت اور محبت کا رشتہ رکھتے تھے، انہیں اپنا مذہبی پیشوا مانتے تھے، لوگ ان کو پیسے دیتے تھے، ان کو قیمت دیتے تھے، ان کو معاوضہ دیتے تھے، لوگ ان کو نذرانے دیتے تھے اور وہ لوگوں سے نذرانے بٹورتے تھے، لوگوں کو مس گائیڈ کر کے، کیونکہ اگر وہ حق بتا دیتے تو انہیں خدشہ یہ تھا کہ ہمارے یہ نذرانے کہیں بند نہ ہو جائیں، تو انہوں نے لوگوں سے نذرانے بٹورنے کا سلسلہ جاری و ساری رکھا، اور لوگ انہیں کوئی حقیر معاوضہ نہیں دیتے تھے، تھوڑا سا انہیں معاوضہ نہیں دیتے تھے، لوگ انہیں نوازتے تھے، لوگ انہیں بہت زیادہ پیسے دے کے جاتے تھے، تبھی تو وہ اتنا سنگین جرم کرتے تھے، یعنی اتنا سخت سنگین جرم کہ وہ لوگوں کو حق سے ہٹا رہے ہیں۔ تو وہ فضول میں ہٹا رہے ہوں گے؟ نہیں، وہ لوگوں سے بڑی بھاری بھرکم قیمت، بھاری بھرکم پیسے، ایک ہیوج اماؤنٹ وہ لوگوں سے لیتے تھے۔ تو اللہ پاک نے پھر قلیلاً کیوں فرمایا؟ قلیلاً اللہ پاک نے اس لیے فرمایا، یہاں قلیل کا معنی ہوگا حقیر، کہ آخرت کی ابدی نعمتوں کو چھوڑ کر اگر کوئی شخص دنیا کے سارے خزانے بھی اپنے پاس جمع کر لے تو وہ سارے خزانے بھی آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں، آخرت کی صرف ایک نعمت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔
एक बाल के बराबर भी, एक मिट्टी के जर्रे के बराबर भी इन सारे खजानों की कोई हैसियत नहीं है अगर इंसान आखिरत की अबदी नेमतों से महरूम हो जाए। तो वो अपने आप को अबदी नेमतों से महरूम कर रहे थे, लाजवाल लाफानी हमेशा रहने वाली नेमतों से अपने आप को महरूम कर रहे थे। तो अल्लाह पाक फरमाता है कि ये समने कलील लेते हैं, ये हकीर सा मुआवजा लेते हैं, ये मेरी किताब को बदल कर, मेरी किताब को छुपा कर, मेरी किताब में से इस आखिरी पैगंबर को माअज़ल्लाह झूठा पैगंबर साबित करके वो लोगों से जितने भी पैसे लेते हैं वो समने कसीर होने के बावजूद हकीकत में समने कलील ही है। और वो जो कुछ अपनी जेबों में भर रहे हैं, अपने पेटों में भर रहे हैं, वो क्या है? अल्लाह पाक बड़ा जोर देकर फरमाता है कि वो नहीं खा रहे मगर आग, वो अपने पेटों के अंदर आग भर रहे हैं। जितना पैसा, जितना सरमाया वो लोगों से बटोर रहे हैं, ये आग है। क्यों आग है आप समझ चुके हैं। ये अल्लाह ताला की नाराज़ी का एक अंदाज है, अल्लाह ताला के जलाल का एक अंदाज है। अल्लाह ताला यहाँ अपने जलाल का इजहार फरमा रहा है कि ये आग के सिवा कुछ भी नहीं ले रहे, ये पैसे नहीं हैं। आज इन्हें नजर आ रहे हैं कि ये पैसे हैं, हकीकत में ये पैसे इनके लिए आग हैं। और आगे देखें अल्लाह पाक का अंदाज, उसी कहर का, गजब का अल्लाह ताला किस कदर इजहार फरमाता है। एक तो बात फरमा दी कि ये अपने पेटों में आग भर रहे हैं, दूसरी बात फरमा दी वला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामह, क़यामत के दिन अल्लाह इनसे कलाम करना भी पसंद नहीं फरमाएगा। आप अंदाजा फरमाएं अल्लाह ताला किस कदर नाराज है। क़यामत के दिन अल्लाह इनसे बात भी नहीं करेगा, अल्लाह इन्हें अपने मुंह भी नहीं लगाएगा, अल्लाह इन्हें अपनी नजरे रहमत से भी महरूम रखेगा, गुफ्तगू करना भी अल्लाह ताला पसंद नहीं फरमाएगा। और तीसरी बात अल्लाह पाक ने फरमाई वला युज़क्कीहिम, और ना ही इन्हें पाक करेगा। इसका मतलब यह है कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको क़यामत के दिन अल्लाह ताला पाक करेगा। वो कौन लोग होंगे? गुनाहगार मुसलमान जिसका खात्मा ईमान पे हुआ होगा। अगर वो गुनाहगार होगा तो दो सूरतें होंगी। उसकी पाकीज़गी का एक जरिया ये होगा कि अल्लाह ताला उसे गुनाहों की सज़ा देगा, और सज़ा देकर यानी आग में डालकर उसे पाक करेगा, पाक करके फिर जन्नत में भेज देगा। एक पाकीज़गी का सोर्स ये होगा। दूसरा जरिया पाकीज़गी का वो ये होगा कि अल्लाह ताला चाहेगा तो मुआफ़ फरमा देगा। एक तीसरी भी किस्म यहाँ बन सकती है, और वो ये कि अल्लाह ताला चाहेगा तो कुछ गुनाहों की सज़ा देगा, कुछ गुनाहों को मुआफ़ फरमा देगा। तो ये अल्लाह ताला की अपनी मर्ज़ी है, उसकी सवाबदीद है, उसका इख्तियार है। लेकिन वो पाक करेगा, गुनाहगार मुसलमानों को वो पाक करेगा। लेकिन यहाँ अल्लाह ताला जिन लोगों की बात कर रहा है, अल्लाह पाक ने फरमा दिया कि इनके लिए पाकीज़गी की कोई सूरत नहीं होगी, यानी ये दायमी जहन्नम में रहेंगे। ये अल्लाह ताला ने ऐलान कर दिया कि इनके लिए दायमी जहन्नम होगी, दायमी आग होगी, हमेशा आग में रहेंगे। वला युज़क्कीहिम, इन्हें कभी भी तज़किया तहारत हासिल नहीं होगी। जब तज़किया हासिल नहीं होगा, पाकी हासिल नहीं होगी, तो ये जन्नत में कैसे जा सकते हैं? नापाक लोगों का तो जन्नत में कोई काम ही नहीं है। जन्नत में तो सिर्फ पाक लोग जाएंगे। अल्लाह ताला पाक करेगा कुछ लोगों को, लेकिन इनसे अल्लाह इतना नाराज है कि अल्लाह इन्हें पाक भी नहीं फरमाएगा, क्योंकि इन्होंने कितमान हक से काम लिया है। ना खुद अच्छाई के रास्ते पर आए और न दूसरों को, औरों को अच्छाई के रास्ते पर आने दिया। चौथा अल्लाह पाक के नाराज होने का इजहार देखिएगा, वलहुम अज़ाबुन अलीम, और इनके लिए दर्दनाक अजाब होगा। अगली आयत के अंदर अल्लाह ताला इजहार ताज्जुब फरमा रहा है। आयत नंबर 175 है ये। उलाइकल्लज़ीना इश्तरवुद्दलालता बिलहुदा, उलाइका ये हैं वो बदनसीब लोग, अल्लज़ीना जिन्होंने इश्तरवु खरीद ली है, अद्दलालता गुमराही, बिलहुदा हिदायत के बदले में, वल अज़ाब बिल मगफिरा और अज़ाब को खरीद लिया है मगफिरत के बदले में। फमा अस्बरहुम अलन नार, फमा किस चीज ने, अस्बरहुम इन्हें इतना साबिर बना दिया है, अलन नारी आग पर। आग के अजाब को भला कौन सह सकेगा, लेकिन ये आग के अजाब पर साबिर बने बैठे हैं।
आग के अजाब को ये समझते हैं कि हम सह लेंगे, हम सब्र कर लेंगे। आज दुनिया के अंदर पैसे जितने बटोर सकते हो बटोर लो, देखा जाएगा, जहन्नम की आग को हम सह लेंगे। वो आग तो कोई चीज़ ही नहीं है। अल्लाह ताला फरमाता है कि ये इनको आग पर किस चीज़ ने साबिर बना दिया। भला कोई आग पर भी सब्र कर सकता है, भला कोई आग को भी बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन ये हैं अपने हाल में मस्त हैं, अपने काले करतूतों के अंदर, काले धंधों के अंदर, काले धन के अंदर ये इतने मस्त हो चुके हैं कि इन्हें आखिरत की भी कोई होश नहीं, अजाब इलाही का भी ज़र्रा बराबर डर नहीं, और ये समझते हैं कि हम अजाब इलाही को भी सह लेंगे, अजाब इलाही को भी बर्दाश्त कर लेंगे। असल अल्लाह ताला फरमाता है, उनकी बात की असलियत को बेनकाब करता है कि इन्होंने जानबूझकर इन्होंने हिदायत दे दी है, गुमराही खरीद ली है। इन्होंने अजाब खरीद लिया है, इन्होंने निजात दे दी है। यानी निजात के बदले में, मगफिरत और बख्शिश के बदले में अजाब को खरीद लिया है, तो इन्हें कैसे बख्शिश मिलेगी? इन्होंने तो खुद सौदा ही मगफिरत का नहीं किया, बख्शिश का सौदा ही नहीं किया। ये बख्शिश के तो खरीदार ही नहीं है, बख्शिश के तो सौदागर ही नहीं है, ये हिदायत के तो तलबगार ही नहीं है, ये गुमराही के तलबगार हैं, ये गुमराही खरीदना चाहते हैं। ये है अल्लाह ताला उनके असल चेहरे को बेनकाब फरमाता है। फिर अगली आयत के अंदर अल्लाह ताला मजीद उनके इस हाल को वाज़े करता है। आयत नंबर 176 के अंदर, ज़ालिका, ये सज़ा, बी अन्ना, इस वजह से होगी क्योंकि अल्लाह ने नज़्ज़ला, उतारी, अल किताबा, किताब, बिल हक़्क़ी, हक़ के साथ। अल्लाह ने ये किताब नाजिल फरमाई है हक़ के साथ। ये किताब आई, ये किताब जो कुरान मजीद है, ये हक़ है। व इन्नल्लज़ीना इख्तलफ़ू फ़िल किताबी लफ़ी शिक़ाक़िन बईद, व इन्ना, और बेशक, अल्लज़ीना, जो लोग, इख्तलफ़ू, इख्तलाफ डाल रहे हैं, फिल किताबी, किताब में, लफ़ी शिक़ाक़िन बईद, वो ज़रूर दूर दराज के झगड़ों में फंसे हुए हैं। बईद का माना है दूर दराज, शिक़ाक़ का माना है झगड़े, मुखालफत, सरकशी, इनाद, दुश्मनी। आप इसको थोड़ा सा इस आयत को समझिएगा कि ये किताब तो हक़ के साथ उतरी है, हक़ लेकर आई है, हक़ वाज़े करने के लिए आई है, लेकिन बजाय इसके कि वो लोगों को इस किताब के करीब करें, वो अपने ऊट पटांग नज़रियात के साथ, बेबुनियाद और बेतुके नज़रियात के साथ वो इस किताब के अंदर इख्तलाफ डाल रहे हैं, लोगों को इस किताब से दूर कर रहे हैं। और बजाय इसके कि वो ख़ुद भी इस चश्मा हिदायत से सराब हों, औरों को भी इस चश्मा हिदायत से सराब करें, लेकिन वो ये काम नहीं कर रहे, हिदायत की तरफ वो नहीं आ रहे, वो मुखालफत पर उतरे हुए हैं, वो दुश्मनी पर उतरे हुए, और बड़ी दूर की दुश्मनी है इनकी। एक मिसाल के ज़रिए मैं अपनी बात को वाज़े करूँगा। मिसाल के तौर पर एक शख्स है, हम उसको नेकी की दावत देते हैं, अच्छाई की दावत देते हैं, लेकिन वो बुराई पर, गुमराही पर इस कदर डट चुका है कि वो अपने गुमराही के रास्ते को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। उसे अपने नफ़ा और नुकसान की भी कोई फिक्र नहीं है कि मुझे नफ़ा हो या मुझे नुकसान हो। यानी मुखालफत पर वो इस कदर उतर आया है कि उसे उस मुखालफत को आगे रखना है, खा उसे नफ़ा मिले या नुकसान मिले, इससे उसे कोई गरज नहीं है। यानी अगर उसे नुकसान भी हो तो वो अपने नुकसान को भी कबूल कर लेगा, लेकिन मुखालफत छोड़ने के लिए वो तैयार नहीं होगा। यही कैफियत अल्लाह ताला यहूद की बयान फरमा रहा है कि ये इस्लाम की मुखालफत पर इस कदर उतर आए हैं कि ये इस्लाम को कबूल करना तो दरकिनार, इन्हें अपने नुकसान से भी कोई गरज नहीं है। जानते हैं कि हमें आखिरत के अंदर नुकसान होगा, जानते हैं कि ये अपना नुकसान कर रहे हैं, जानते हैं कि इन्हें जहन्नम की आग में जलना पड़ेगा, लेकिन ये जहन्नम को भी गले लगा रहे हैं, जहन्नम को भी कबूल कर चुके हैं, गुमराही को कबूल कर चुके हैं, और वो किसी सूरत भी हक के रास्ते को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। ये आप समझ लें कि यहूदियों का असल चेहरा है, जो जहाँ अल्लाह पाक ने बिल्कुल साफ शफाफ बेनकाब कर दिया है और उनकी असलियत से पर्दा उठा दिया है कि ऐ मुसलमानों, तुम जान लो यहूद तुम्हारे कितने बड़े दुश्मन हैं। उनकी इस दुश्मनी को समझते हुए
ان کی دشمنی سے بچنے کے لیے غور و فکر سے کام لو کہ تم نے کس طریقے سے ان کی دشمنی سے محفوظ رہنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید کو صحیح طور پر سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل پیرا ہونے اور اس کے پیغام کو دنیا بھر کے اندر عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 176 مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ کلاس کے اندر ہم آپ کے پاس حاضر ہوں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 کے ساتھ۔ بہت شکریہ۔